رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد. میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امن میں رکھیں. آمین. میں سب سے پہلے اس رب کائنات کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے دین کی باتیں سننے اور آپ تمام کو سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے کاموں میں ابھی ہمارے اس سے دین کی خدمت لے رہا ہے. الحمدللہ. تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی مقصد کی طرف. آج ہم بات کرنے والے ہیں، آج ہم معلوم کرنے والے ہیں کہ ہماری امت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کیا غفلت ہے. آج ہم ہماری غفلت کے بارے میں، ہم اس دنیا میں کتنا مشغول ہو چکے ہیں، اللہ کے ذکر سے کتنا ہم دور چلے گئے ہیں، اللہ کیا چیز ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. تو آج خود ہماری غفلت کے بارے میں آج ہم جان لیں گے، ہم کتنا غفلت ہو کر اس دنیا میں کتنا مشغول ہو چکے ہیں. تو دیکھیے میری ماں اور بہنوں، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے. صرف اور صرف یہ ایک امتحان کی، ایک ایگزام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خدا کی بندگی یعنی اللہ نے اپنی بندگی کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. یہاں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا میں آ کر اپنی دل کو، اپنی جان کو اس دنیا کے لیے قربان کر دیں. ہمارا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت سے جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت سے ہم اللہ کو معلوم ہے جبکہ خود ہماری ماں ہم کو جانتی نہیں تھی، یہ دنیا ہمیں جانتی نہیں تھی، کوئی انسان، کوئی شخص ہمیں نہیں جانتا تھا. اس وقت سے اللہ ہمیں جانتا ہے. ہماری تقدیر کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، ہمارا سب کچھ اللہ فیصلہ کر چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب میں نہیں تھی اور آپ بھی نہیں تھے، دنیا بھی نہیں تھی، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور جب میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، تمام کے تمام چل رہے ہیں، انسان جانور ہر کوئی اس دنیا میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی باقی ہے. اور اس کے بعد میں بھی نہیں رہوں گی، آپ بھی نہیں رہیں گے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی. اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رہے گا، کیونکہ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اس کے علاوہ اس دنیا میں نہ انسان رہے گا، نہ جانور رہے گا، نہ درخت، نہ گھر، نہ محل، جس کے لیے آج ہم اپنا خون پسینہ ایک کر کے محلے بن رہے ہیں، اتنے اتنے بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں. یہ گھر بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے. اگر ہمارا کام آنے والا اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہمیں کام آئیں گے. تو غور کیجئے، سوچئے، ایک بار اپنا اندازہ لیجئے، 5 منٹ 5 وقت نکال کر سوچ لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس لیے ہمیں دنیا میں آئے ہیں، ہم کون ہیں، ہم کس کی ملت ہیں، ہم کس کی اولاد ہیں، ہم کس کی نسل ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے. یہ ایک بار سوچنے کی بات ہے. لیکن آج ہم نہیں سوچتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ دنیا اتنا اپنی طرف لے لی ہے، اتنا ہم دنیا سے پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی ہم لوگ بھول چکے ہیں. ہمارا کیا لقب ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر کوئی ہمیں نام پکارتا ہے تو صرف ہمارا نام یاد ہے، لیکن ہمارا اصل نام مسلمان ہے، ہمارا اصل نام مومن ہے جو کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو آج ہم اصلی نام کو بھول چکے ہیں. ہم اپنے ناموں کو یاد رکھے ہیں. ہمارا مذہب کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارا دین کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. اتنا بچے کو اگر کسی سے پوچھیں کہ نبی کا مکمل نام کیا ہے تو اس بچے کے زبان سے نبی کا مکمل نام بھی نہیں آئے گا. کیونکہ ماں باپ بھی اس دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس دنیا میں بھٹکائے ہوئے ہیں. کیوں؟ اتنا ہمیں سمجھ نہیں ہے، کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے مقدر میں اللہ نے موت
को लिख चुका है? क्या हमें मालूम नहीं है कि हमें एक दिन खबर में सोना होगा? क्या हमें पता नहीं है कि एक दिन हमारा जिस्म कीड़ों का गिज़ा बनने वाला है? क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना ही होगा। हर जान को, हर इंसान को, बच्चे को, बूढ़े को, लड़के को, लड़की को, हर किसी को मौत का मजा चखना है। हम तमाम के तमाम जानते हैं इस बात को, लेकिन इस बात को पीछे रख देते हैं और हम अपनी जिंदगी में मसरूफ होके चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, तुम किसी को हर बार किसी को दोस्त बनाते हो, हर बार किसी से प्यार करते हो, हर बार अपने साथ किसी को लेकर चलते हो, हर बार किसी से मोहब्बत करते हो। कभी मुझे तो भी दोस्त बना के देखो, कभी मुझे तो भी अपने साथ लेके चलो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाला है, बाप से भी ज्यादा हया देने वाला है, बाप भाई से भी ज्यादा इज्जत देने वाला है, दोस्त से भी ज्यादा वफा करने वाला है। लेकिन हम इस धोखे की जिंदगी के लिए, इस धोखे की जगह के लिए, इस धोखे की दुनिया के लिए हम अल्लाह को भुला बैठे हैं, नमाजें भुला बैठे हैं, सदका खैरात हमें मालूम नहीं है, हमें हज वगैरह मालूम नहीं है, पर्दे का कोई लिहाज नहीं है। अल्लाह के वो काम जो अल्लाह ने हमें तमाम बताया है, वो तमाम के तमाम भूल कर हम इस दुनिया में मसरूफ हो चुके हैं। क्यों मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसूल्लाह फअन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। यानी इसका तर्जुमा ये है, वला तकूनु कल्लज़ीना, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ। ये किसको कह रहा है? हम लोगों को, अहले ईमान को, यानी मुझे और आपको कहा गया है कि तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ, नसूल्लाह, जो अल्लाह को भुला बैठे हैं, जो अल्लाह को भूल चुके हैं, अल्लाह का जिक्र मालूम नहीं, उनका दीन मालूम नहीं, उनका मजहब मालूम नहीं, भूल चुके हैं अल्लाह को। फअन्साहुम अनफुसहुम, यानी उन लोगों के जान खुद, उनके दिल उनको भुला बैठे हैं। जो हमारा जिस्म है, हमारे जिस्म के अंदर जो दिल रहता है, हमारे दिल खुद हमें भूल चुके हैं कि हम कौन है, हमारा मजहब क्या है, हमारी आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं। तो उलाइका हुमुल फासिकून, वही लोग नाफरमान हैं, वही लोग गुनहगार हैं, वही लोग फासिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना साफ साफ बयान कर चुका है कि ऐ मोमिनो, तुम उस तरह मुनाफिकों की तरह ना हो जाओ। मुनाफिक दुनिया को जन्नत समझते हैं, दुनिया को क्या समझते हैं? जन्नत समझते हैं। हालांकि ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है, मोमिनों के लिए आखिरत में जन्नत है। तो आज हमें गौर करनी चाहिए कि हम मोमिन हैं या मुनाफिक हैं। अपने आप का अंदाजा हम खुद लें, किसी को बोलने से पहले हम खुद अंदाजा कर लें कि हम मोमिन की जिंदगी गुजार रहे हैं या मुनाफिक की जिंदगी गुजार रहे हैं, या अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं, या दुनिया के लिए हम जी रहे हैं। तो गौर करने की बात है मेरी माँ और बहनों, हर हमेशा पैसा कुछ काम नहीं आता है, पैसा कुछ भी काम नहीं आता है। हमारा अकीदा ये बन चुका है, हमारे दिमाग व दिल में ये बात रह चुकी है कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, पैसे से ही सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो कुन फयकून में सब कुछ कर देगा, हो जा तो हो जाएगा। पैसे के बगैर भी अल्लाह सब कुछ कर सकता है, पैसे से भी अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह की जात ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर कुन फयकून कह दे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर कोई इंसान, कोई शख्स पैसों से प्यार इतना करता है कि उसे आखिरत का भी कोई ख्याल नहीं है, उसे मरना, हमें मरना है, ये भी उसके दिमाग में नहीं है, तो पैसों से प्यार करने वाला नमाज पढ़कर भी धोखा देगा, पैसों से प्यार करने वाला हज करके भी जुल्म करेगा, पैसों से प्यार करने वाला सदका देकर भी गरीबों के जेबों पे डाका डालेगा। क्योंकि पैसा उसका मकसद क्या होता है? पैसा, उसकी नीयत क्या होती है? पैसा। इसीलिए पैसा सिर्फ जीने के लिए एक जरिया है मेरी माँ और बहनों, पैसा ही जिंदगी नहीं है। पैसा सिर्फ जीने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक जरिया है। उसी को हम जिंदगी समझ के बैठ गए तो हमें याद करनी चाहिए, हमें ये दिमाग में अच्छे से ख्याल होनी चाहिए कि हमें एक दिन मरना होगा, एक दिन हमें अल्लाह के पास अपने आप को जवाब देने होगा। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला, जब हमें खबर में सोते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें खबर में एक पेपर देगा जिसको हमें भरना होगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमें दुनिया में किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम का तमाम खबर में हमारा सवाल लेगा और कहेगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन
किया जाएगा मुझे और आपसे, मन रब्बुका, आपका रब कौन है? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हमारे पास कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के लिए जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, हम दुनिया के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं। तो देखिए मेरी माँ और बहनों, चांद घड़ते बढ़ते कह रहा है कि ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, तुम जागो, तुम होशियार हो जाओ, तुमसे मैं एक दिन लेकर जा रहा हूँ, तुमसे मैं एक महीना लेकर जा रहा हूँ, तुमसे मैं एक साल चुरा लिया हूँ। अगर हमारी कोई चीज चुरा गई, अगर हमारा माल कोई चुराता है, अगर हमारा कपड़ा कोई चुराता है, अगर कोई हमारी चीज दूसरा चुरा लेता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारी जिंदगी चुरा रही है, यहाँ हमारी जिंदगी जा रही है, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए, हमेशा पैसों के पीछे भागने से पहले, एक घर व दौलत के पीछे भागने से पहले, हमारे मौत आने से पहले हमें चाहिए कि हम अपनी मौत की तैयारी करें। हमें मौत कब्र में जाके सोने से पहले हम मौत की तैयारी करें, क्योंकि कब्र में बहुत बहुत सवालात किए जाएंगे। अल्लाह को हमें जवाब देना होगा, अल्लाह के पास हमें अपने आप को खड़ा करना होगा। उस वक्त में कोई हमारा साथ नहीं देगा। देखिए, अगर अल्लाह तबारक व तआला चांद को रोक ले तो कौन है अल्लाह तबारक व तआला के उस रोकने को बचा सकें। अगर अल्लाह तबारक व तआला हवाओं को तेज कर दे तो कौन है उसके हवाओं के सामने खड़ा रह सकें। अगर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के सारे समंदर के लगामों को अगर अल्लाह ढीला कर दे तो कौन है उसके लगामों के सामने तूफान कर सके, कौन है उसके तूफानों से मुकाबला कर सके। अगर अल्लाह तबारक व तआला रात को रोक ले तो हमारा रिश्वत का पैसा, हमारा जुए का पैसा, हमारा हराम पैसा, हमारा जुल्म के लिए हुए जमीन व फ्लैट हमारे कहाँ काम आएंगे? नहीं, क्योंकि ये दुनिया हमेशा जी लगाने की जगह नहीं है, ये इबरत की जहाँ है। ये दुनिया मच्छर के बराबर भी अल्लाह के पास वैल्यू रखती नहीं है मेरी माँ और बहनों। मच्छर के फर से भी बदतर है ये दुनिया अल्लाह के निगाहों में। तो आज हम ऐसी दुनिया के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को इस दुनिया में इतना मशगूल कर चुके हैं। तो देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ, ये दुनिया अल्लाह के पास क्या मिसाल रखती है। तो देखिए, अब वॉशरूम है, वॉशरूम यानी हमाम, जो कि हम अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए जाते हैं, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए जाते हैं। तो क्या हमेशा हम उस वॉशरूम में, उस बाथरूम में हमेशा दिन से लेकर रात तक उसमें रह जाएंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि सिर्फ वो हमारी हाजत को पूरी करने की जगह है, हमारी जरूरत को पूरी करने की जगह है, हमेशा रहने की जगह नहीं है। वो एक गलीज जगह है, बदबू की जगह है, वो रहने की जगह नहीं है। वहां पे थोड़ी ना हम लोग बेड डाल के सोते हैं, नहीं सोएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हाजत को पूरी करने की जगह है। तो ये दुनिया भी सिर्फ और सिर्फ हमारी जरूरत को पूरी करने की जगह है, सिर्फ और सिर्फ हमें आमाल करने की जगह है, अल्लाह को राजी करने की दुनिया है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो हमें भी उस बाथरूम की तरह, उस वॉशरूम की तरह इस दुनिया को समझे, क्योंकि सिर्फ हाजत को, जरूरत को पूरी करने की जगह है, हमेशा रहने की जगह दुनिया नहीं है। तो गौर कीजिए मेरी माँ और बहनों, हम इस दुनिया में अपने आप को कितना मशगूल कर चुके हैं। हमारी जिंदगी आज और कल में तकसीम कर चुकी है, हमें मालूम नहीं है। आज हम यहाँ पे ठहर कर बात कर रहे हैं, तो क्या हमें मालूम है कि हमारी बात को हम मुकम्मल कर सकेंगे? नहीं, हमें पता नहीं है हमारी बात मुकम्मल होगी या नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी लम्हों में, मिनटों में अल्लाह तबारक व तआला ने तकसीम किया है। आज हम रात जिंदा है तो पता नहीं कल हमारी आंखें खुलेंगी भी या नहीं। तो आज हमें ऐसी दुनिया के लिए, ऐसी जिंदगी के लिए रो रहे हैं, ऐसी जिंदगी के लिए हम तड़प रहे हैं। नहीं, इस दुनिया से हमें बाज आनी चाहिए, इस दुनिया को हमें छोड़नी चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, अल्लाह की तरफ हमें रुजू होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम इतने गुनह काम करने के बावजूद भी अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है। आज हम ये दुनिया भी ऐसी है, दुनिया के लोग भी ऐसे हैं कि अगर घर में कोई इंतकाल हो जाता है, अगर कोई घर में गुजर जाता है तो रोएंगे। हमारे लिए कब तक रोएंगे? 1 दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, 3 दिन, 4 दिन, नहीं तो 1 महीना, अगर भी नहीं तो 1 साल, अगर उतनी भी ज्यादा मोहब्बत हो तो 1 साल के बाद इंसान को भूलना होगा। 1 साल के बाद उसके दिमाग से उस इंसान का जो भी यादें हैं, जो भी ख्यालात हैं, पूरे के पूरे बाहर चली जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए 1
हैं, जब दफन करके घर आ जाते हैं तो फिर उसकी याद से बाहर आ जाते हैं लोग। तो गौर कीजिए, मरने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए जिंदगी भर के रोया नहीं जाता है, चंद घंटों के लिए रोया जाता है। अगर अल्लाह को राजी करेंगे, अगर अल्लाह को खुश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा जन्नत में रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत नसीब फरमाएगा। तो हमें अपनी इस दुनिया से बाज आनी चाहिए, इस दुनिया के धोखे में मत पड़िए मेरी माँ और बहनों। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, हर बार तुम किसी को दोस्त बनाते हो, किसी से मदद मांगते हो, किसी के सामने मजबूर बन के बैठते हो, कभी मेरे सामने भी मजबूर बन के बैठो, कभी मुझसे भी मदद मांगो, कभी मेरे सामने भी अपने पेशानी को तस्लीम कर दो, फिर देख लेना मैं तुम्हारे हाजतों को, फिर तुम्हारे जरूरियात को मैं कैसे पूरा नहीं करूंगा। सिर्फ हमारे मांगने में देर है मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला के देने में देर नहीं है। तो इस दुनिया से बाज आ जाइए, अपने बच्चों को नेक हिदायत दीजिए, अपने बच्चों को नेक की तरफ भेजिए और खुद अपने तरफ भी और खुद अपने आप को भी अल्लाह की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, ये एक इब्रत की जगह है मेरी माँ और बहनों। तो ये दुनिया एक ऐसी चीज है, जबकि हम बचपन में छोटे रहते हैं तो हमको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब करते हैं। जब हम जवान हो जाते हैं तो हमारी जवानी क्या कर देती है, दुनिया में मशगूल बना देती है, पागल बना देती है। यहाँ इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खास करके फरमाया है कि मुझे तमाम इबादतों में से जवान की इबादत बहुत ज्यादा पसंद है। जवान यानी मैं और आप जो जवान रहते हैं, तो जवान की इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों कहा? क्योंकि जवानी का वक्त ही ऐसा है कि जो कि अपनी जिंदगी को दुनिया में मशगूल कर देते हैं, दुनिया में माइल कर देते हैं, दुनिया में इतना मगन हो जाते हैं कि हमें अल्लाह याद नहीं रहता है। तो हमें याद करनी है, हमें अपनी आइडेंटिटी को याद दिलानी चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है, हमारा दीन इस्लाम है, हम नबी की उम्मत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हम आए हैं, हमारा अल्लाह तबारक व तआला हमारा खुदा है, एक परवरदिगार है। तो हमें अपने अच्छे से अच्छे ख्याल रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इस दुनिया के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं। ये दुनिया जो कि मच्छर के फर के बराबर भी अल्लाह के पास कोई वैल्यू रखती नहीं। इस दुनिया के लिए हमें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, तुम किसी के पीछे भागने से पहले, तुम किसी के पीछे दौड़ने से पहले मेरे पीछे भागो, मेरे पीछे दौड़ो, मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में ला के डाल दूंगा, बशर्ते कि तुम दिल से मुझे मानो, तुम दिल से मेरे सामने सजदा कर लो। तो देखिए मेरी माँ और बहनों, हमें इस दुनिया में जी लगाने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। अब दुनिया उस वक्त में तो 60-70 साल के लोग जिंदा रहते थे, 19-90 साल तक भी लोग जिंदगी गुजारते थे बुढ़ापे में। लेकिन आज ऐसा जमाना आ चुका है कि 30-40 साल की उम्र में लोग दूर हो जा रहे हैं, अल्लाह के प्यारे हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा अजाब को भेज दिया है जिसका नाम कोरोना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बीमारी को, यानी जब हमारी उम्मत में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जब ज्यादा से ज्यादा परेशानी, जब ज्यादा से ज्यादा बेहयाई हो जाती है, आम हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दो अज़ाब नाजिल फरमाता है। एक अज़ाब, जवानों को मौत आएगी, बच्चा नहीं, बड़ा नहीं, 20 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, 10 साल की नहीं, हर किसी को बचपन में ही, जवान ही में ही क्या हो जाएंगे, मौत आएंगी। और दूसरा जो है, अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी बीमारी नाजिल करेगा जिसका दवा नहीं होगा, जिसका इलाज भी नहीं होगा। तो आज ऐसी ही हालत में हम लोग गुजर रहे हैं। तो अपने आप को, हमें अपने आप का जायजा लें, अपने आप की जायजा लेकर अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। इस दुनिया के पीछे भागने से बेहतर है कि अल्लाह के पीछे भागें, अल्लाह की तरफ रुजू होने की कोशिश करें, अल्लाह से दिल लगाने की कोशिश करें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। इस दुनिया के पीछे भागने से बाज आनी चाहिए। तो देखिए मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला से अपने दिल की गहराइयों से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप तमाम को इस दुनिया की जो मशगूलियत है, इस दुनिया का जो पागलपन है, उस पागलपन को छोड़कर हमें अल्लाह की ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश करें। हमारी राजी की ज़िंदगी छोड़कर अल्लाह की रज़ा की ज़िंदगी हम गुजारने के अल्लाह मुझे और आप तमाम को हिदायत अता फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के बोलने से, सुनने से भी ज़्यादा हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
تو چلیے پھر سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.